Hi guys, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to give you the information about self-pip test. Yes, now I know that everybody is wondering what is self-pip test, right? So I will let you know today what is self-pip test and where this test and how you can apply for this test and why this test is mandatory and everything. But before that, and also I will let you know about the upcoming dates and how India conduct this exam. Okay, so but before that, if you are new on this channel, I'll request you to please don't forget to subscribe our channel, and if you like this video, please click on the like button, and also please stay tuned with us because I'm going to predict our May month prediction for your upcoming IELTS exam. But before that, if you are new on this channel, don't forget to subscribe our channel. And also, if you are looking for the English speaking buddy partners, then we are here to help you out with that. My team is definitely, they will reach out to you and schedule one-on-one meeting with you, and then we will prepare you for your IELTS exam. But again, if you are new on this channel, please don't forget to subscribe our channel. Now get back to our today's topic, that is self-pip. This is the topic one of our students, he requested us for this topic to explain about this test and about the fee and the criteria, where it is and why this test is mandatory in some of the foreign countries. Okay, so now let's get started. But before that, if you are new on this channel, don't forget to subscribe this channel. So now let's get started. What is self-pip? First thing I will let you know, self-pip means the Canadian English Language Proficiency Index Program. So CEL means Canadian English Language, and then PIP means Proficiency Index Program, is widely recognized English language proficiency test. It's designed to assess the English language skills of individual who wants to live, work or study in Canada. So basically ये जो टेस्ट है वो कनाडा के लिए मेनली है, बट अगेन अगर आप इंडिया से भी इसको देते हो कनाडा जाने के लिए, then this is also applicable on you because India is also conducting this test these days. Okay, सो मैं बहुत सारे मैंने सेंटर्स के साथ और बहुत जो सेल्फ पिप ऑर्ग के साथ कांटेक्ट करके दिस इंफॉर्मेशन आई गेट इट फ्रॉम देम. बट अगेन प्लीज़, जब भी आप इस टेस्ट के लिए अप्लाई करते हो देन वेरीफाई योर सेल्फ टू बिफोर अप्लाइंग एनीवेयर. ओके, सो नाउ अभी आपको ये पता तो चल गया व्हाट इज सेल्फ पिप. सेल्फ पिप इज अ कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम. सो नाउ लेट्स सी व्हाट अगेन टेस्ट जो है, evaluation, why and how you evaluate this test. Okay, so what this test is evaluate, so as you know about that, this test is required for individuals who wants to live, work or study in Canada. तो अभी देखते हैं कि इस टेस्ट के अंदर क्या होता है. दिस टेस्ट इज सिमिलर टू योर आइल्स एग्जाम. जैसे आप आइल्स एग्जाम देते हो उसी तरह से ये टेस्ट भी इवेलुएट किया जाता है. आपके 4 जो है लैंग्वेज इसको इसमें चेक किया जाता है. 4 एरियाज को चेक किया जाता है, आपकी लिसनिंग स्किल्स को, रीडिंग स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को एंड ऑल्सो स्पीकिंग स्किल्स को. सो ऑल दीज 4 एरियाज दे विल इवेलुएट फॉर इन दिस टेस्ट. सो ये जो टेस्ट है बेसिकली आपकी चारों स्किल्स जो कि आप आइल्स के अंदर भी देते हैं, दिस इज नथिंग इज न्यू इन देयर बट जस्ट द नेम इज चेंज्ड. एंड और ये जो टेस्ट है वो स्पेसिफिकली अगर आप कनाडा के अंदर रह रहे हो, जैसे स्टूडेंट्स उनके लिए भी मैंडेटरी है, अगर उनको पीआर के लिए अप्लाई करना है देन दिस टेस्ट दे कैन हैव दिस टेस्ट, बिकॉज इसको भी उतने ही इक्वालिटी और इस टेस्ट को भी वैसे ही रिकग्नाइज किया जाता है जैसे कि आपके आइल्स टेस्ट को किया जाता है अब्रॉड जाने के लिए. ओके, सो ये 4 जो एरियाज है यहाँ पे इवेलुएट किए जाते हैं, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑल्सो. सो क्यों लेना चाहिए सेल्फ पिप टेस्ट? व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेकिंग दिस टेस्ट इंस्टेड ऑफ आइल्स? आइल्स की जगह पे हम सेल्फ पिप टेस्ट क्यों लेते हैं, क्यों लेना है? ठीक है, तो अभी इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए. द सेल्फ पिप टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर वेरियस पर्पसेस इन कैनेडा. ठीक है, कनाडा के अंदर ये बहुत ही जरूरी है, दिस टेस्ट एंड वन ऑफ द अदर टेस्ट टू. सो आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दैट टू यू, बट आज हम सिर्फ सेल्फ पिप की बात कर रहे हैं, तो अब मैं आज आपको सिर्फ सेल्फ पिप के बारे में बता रही हूँ. बट इन माई नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज जैसे हम इस सेल्फ पिप टेस्ट के लिए बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर रहे थे, तो उसी के अंदर ही हमें एक और टेस्ट का पता चला है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए जिनको भी
कनाडा के अंदर पीआर लेनी है या कनाडा के अंदर जॉब, या स्टूडेंट जो यहाँ पे वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है, तो और दूसरा टेस्ट कौन सा है, आई विल लेट यू नो अबाउट दैट ऑल्सो। बट आज जैसे कि हम बात किया है कि मैं बता रही हूँ आपको कि सेल्फ पिप के बारे में, तो व्हाई यू नीड टू टेक दिस टेस्ट। ओके, सो यहाँ पे कनाडा के अंदर क्यों ये मैंडेटरी है। फर्स्ट पर्पज इज इमिग्रेशन एप्लीकेशन। जब आप इमिग्रेशन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं टू असेस योर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, तो इमिग्रेशन जो आप परमानेंट के लिए जब आप अप्लाई करते हो, तो उस चीज़ के लिए आपको वहाँ पे सर्टिफाई करना पड़ता है, खुद को गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि व्हाट यू नो अबाउट इंग्लिश। बिकॉज आप अगर इंडिया से हो या किसी भी और कंट्री से हो, इट्स नॉट ओनली फॉर इंडिया, किसी और कंट्री से भी हो, जब आपको फॉरेन के अंदर जाके कहीं पे सेट होना होता है, तो देन दे विल टेस्ट योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ओके, सो उसके लिए आपको जो, जब आप फाइल को अप्लाई करते हो, जब अपना अप्लाई करते हो इमिग्रेशन एप्लीकेशन जो आपकी अप्लाई होती है, तो उसके अंदर वो आपसे एक सर्टिफिकेशन लेते हैं, दैट इज फॉर द टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका वर्क परमिट। अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको सेल्फ पिप टेस्ट जो है उसका रिजल्ट लगवाना जरूरी होता है। सम वर्क परमिट एप्लीकेशन रिक्वायर सेल्फ पिप। सेल्फ पिप क्यों रिक्वायर करते हैं? बिकॉज दिस इज फॉर कैनेडा, और कैनेडा के अंदर रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशली बना हुआ टेस्ट है। एंड स्टडी परमिट के लिए, जब आपको स्टडी परमिट भी चाहिए, तो वो आप सर्टेन स्टडी परमिट्स एप्लीकेशन में रिक्वायर सेल्फ पिप टेस्ट रिजल्ट। सो कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं जहाँ पे सेल्फ पिप टेस्ट का जो रिजल्ट है उसको ही रिक्वायर किया जाता है, उसी की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपने आइल्स भी किया है, दे विल see your IELTS, but again if you have self pip, then there's a more weightage in this test. Okay, so अगर आप स्टडी परमिट के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो भी कनाडा के अंदर, तो इसको बहुत वैल्यूएट किया जाता है, वैल्यू दी जाती है। और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, अगर आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी चाहिए, तो सम प्रोफेशनल्स रिक्वायर्स सेल्फ पिप टेस्ट रिजल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भी जो सेल्फ पिप टेस्ट है उसको रिक्वायर किया जाता है। तो ये तो है सेल्फ पिप के बारे में। बट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है वो, सेल्फ पिप टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर वेरियस पर्पसेस इन कनाडा इंक्लूडिंग, और कौन कौन से पर्पसेस के लिए सेल्फ पिप टेस्ट जो है वो कनाडा के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, ज़रूरी है। क्या है वो? The test ensures that applicants have a necessary English language skills like communicative, communicate efficiently, integrate into Canadian society, succeed to their chosen profession or studies। तो ये तीन पर्पसेस है। एक तो आप कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हो, कम्युनिकेट अच्छे से इफेक्टिवली करो, तो वो इस टेस्ट के थ्रू उनको लगता है कि हाँ, अगर आप पास हो देन यू कैन इजीली कम्युनिकेट, और वहाँ की इंटीग्रेट हो सकते हो, जो कि वहाँ की सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसके अंदर भी, और लोग आपको पहचाने। अगर आप अच्छी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स रहेंगी, देन डेफिनेटली यू कैन एबल टू टॉक, यू कैन एबल टू प्रोसेस एनीथिंग। जिस चीज़ को भी आप शुरू करोगे तो उसको एंड टू एंड तक आप करोगे कंप्लीट। सक्सीड इन देयर चोजन प्रोफेशन, जो भी आप प्रोफेशन चूज कर रहे हो, चाहे वो आपका मैनेजमेंट का है, चाहे वो आपका सिंपल लेबर का है, चाहे वो आपका सिंपल रेगुलर एम्प्लॉय का है, तो वहाँ पे आप सक्सीड कर सकते हो। और अगर आप स्टडी करो देन यू कैन ऑल्सो सक्सीड इन योर स्टडी टू। और बाय रिक्वायरिंग द सेल्फ पिप टेस्ट द कैनेडियन गवर्नमेंट एम्स टू, क्या क्या एम है गवर्नमेंट के इसके लिए? सो वेरी फर्स्ट थिंग, दे इंश्योर्स दैट न्यू कमर्स हैव द लैंग्वेज स्किल नीडेड टू थ्राइव। Second, facilitate successful integration into Canadian life. And third is to maintain high standard for language proficiency in various professions. So जैसे कि जो भी कोई नया जा रहा है, उनको कनाडा के अंदर अगर लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, देन एज पर कैनेडियंस दे कैन नॉट सर्वाइव इन देयर रेगुलर रूटीन्स। सो इसीलिए लैंग्वेज का जानना और लैंग्वेज का समझना और उसकी जान के आगे अपने प्रोफेशन के अंदर
आगे बढ़ना जो है, दैट इज द मेन एम फॉर द गवर्नमेंट. सो दैट इज वाई दे मेंटेन द हाई स्टैंडर्ड्स फॉर दिस लैंग्वेज. तो यहाँ पे थोड़ा हाई स्टैंडर्ड रहता है. मे बी हम अपने अगले प्रोग्राम, इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट, हाउ द टेस्ट लुक्स लाइक, हम वो भी वीडियो आगे बना देंगे. बट अभी तक के लिए जो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, दिस इज द वन ऑफ द टेस्ट जो कनाडा, जो सरकार है, जो कनाडा है, वो अपने लिए अप्लाई करते, अपने स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए और जॉब जिन्होंने भी अप्लाई करना है वहाँ पे, उनके लिए मैंडेटरी है. नाउ नेक्स्ट इज कीप इन योर माइंड. ओके, क्या आपको ध्यान में रखना है? स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, प्रोफेशंस और इंस्टीट्यूशंस. सो क्या जो जो भी आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो पिप टेस्ट को, तो अपने दिमाग में सबसे पहले ये रखना कि आप अप्लाई किस चीज़ के लिए कर रहे हो. अगेन, जैसे कि वहाँ हमारे आइल्स के अंदर दो कैटेगरीज रहती है, जनरल एंड एकेडमिक. यहाँ पे भी सेल्फ पिप के अंदर भी देयर इज टू डिफरेंट कैटेगरीज रहती हैं. नंबर वन इज जनरल, CELPIP General and CELPIP General LS. LS means listening and speaking. Okay, so ये दो चीजें रहती हैं. ये दोनों के अब अंदर डिफरेंस क्या है? What is the difference between CELPIP General and CELPIP General LS? तो चलो listening and speaking. चलो अभी इसके अंदर हम देखते हैं डिफरेंस क्या है. So first thing, there are two types of जैसे कि मैंने भी बताया कि दो तरह के सेल्फ पिप टेस्ट रहते हैं. तो मेक श्योर यू कंफर्म विच वर्जन ऑफ टेस्ट यू नीडेड और यू रिक्वायर्ड फॉर. ओके, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, और जनरल में कर रहे हो तो जनरल के अंदर आपको हर चीज़ चाहिए. मीन्स कि आपको लिसनिंग भी आनी चाहिए, रीडिंग भी करनी आनी चाहिए, राइटिंग भी आना चाहिए और स्पीकिंग भी आना चाहिए. सो देयर इज अ टू डिफरेंसेस. ओके, द मेन डिफरेंस इज जनरल. आपको जनरल के अंदर चार एरियाज को आपके असेस करते हैं, लाइक योर इंग्लिश लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. प्रोवाइड द स्कोर ऑफ ईच component, then you will receive the separate score of listening, reading and writing and speaking. तो आपको चारों के अंदर आपको सेपरेटली मार्क्स मिलेंगे, जैसे कि सिमिलर टू योर आइल्स एग्जाम. आइल्स के अंदर भी सेम ही रहता है, यहाँ पे भी आपका सेम ही रहेगा. नेक्स्ट आपका रहता है सेल्फ पिप जनरल लिसनिंग एंड स्पीकिंग. सो यहाँ पे दो एरियाज को वो आपके सिर्फ असेस करते हैं. क्या होता है उसके अंदर, आपकी लिसनिंग कैसी है और आपकी स्पीकिंग कैसी है. लाइक योर इंटरव्यू, राइट, स्पीकिंग started with the simple, like your simple part one, like general, and after that they will go to little bit depth in there. Okay, आपको टॉपिक भी देंगे, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस भी करेंगे, आपसे सुनेंगे भी, आपके थॉट्स को भी सुनेंगे, आपकी वोकैबुलरी, कोहेरेंस, पैराफ्रेजेस, everything they will check. Provides a score in two components. You will receive the separate score. Listening के आपको अलग से स्कोर मिलेंगे, स्पीकिंग के अलग से मिलेंगे. On the basis of that, then you can decide what you need next. Okay, तो ये है आपका डिफरेंस. तो आपका डिफरेंस क्या है सेल्फ पिप जनरल का एंड सेल्फ पिप जो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग का. जनरल के अंदर आपको चारों एरियाज लाइक आइल्स की तरह आपको देना पड़ता है, और लिसनिंग और स्पीकिंग का जो एलएस है, जनरल एलएस के अंदर आपको सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग देना होता है. बट अगेन आपको मार्क्स जो है उसके सेपरेटली ही मिलेंगे. तो ये आपका नेक्स्ट यहाँ पे रहता है. Now, the next important thing is here, in general test is important comprehensive, while the self-pip general listening and speaking is shorter test. वो थोड़ा रहता है बिकॉज उसके ऊपर सिर्फ फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल्स, उसके ऊपर सिर्फ लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर ही फोकस किया जाता है. सम प्रोग्राम्स और इंस्टीट्यूशंस में एक्सेप्ट आइदर टेस्ट वाइल अदर्स में रिक्वायर द फुल सेल्फ पिप जनरल टेस्ट. सो डिपेंड करता है. देखिए, अगर आप कनाडा के अंदर रह के टेस्ट को दे रहे हो तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि अगर आप जॉब कर रहे हो या कॉलेज में हो तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है. उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव की है, जनरल टेस्ट मोर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कुछ रहता है, राइट. और आपकी जनरल एलएस की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वो छोटा टेस्ट रहता है, कंपेरेटिवली थोड़ा सस्ता भी रहता है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ दो एरियाज को आपके असेस किया जा रहा है, वहाँ पे आपके सिर्फ 4 से 5 एरियाज को लिया जा रहा है, बिकॉज इंग्लिश लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, सॉरी 4 एरियाज को लिए, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग को देखा जा रहा है. यहाँ पे सिर्फ 2 ही एरियाज है. ऑब्वियसली थोड़ा सस्ता भी रहता होगा, राइट. तो वो भी हम आगे जाके देखते हैं कि कितना सस्ता और क्या है उसका रेट. बट अगेन, अभी के लिए कि जहाँ पे आप रह रहे हो आपको वहाँ के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको कौन सा टेस्ट यहाँ पे देना, रिक्वायरमेंट क्या है. जो भी आप अगर पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पीआर के अंदर भी आपको यू नीड टू चेक दैट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द पीआर. इज दैट टेस्ट
IELTS, you need to give them an IELTS test, or IELTS is only for India, then you need to give here only CELPIP. Or the third test, I will let you know the third test in my next video, because मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ, so that is why I just keep both them separate. So otherwise हमारी ये एक वीडियो ही 1 घंटे का था, तो मैंने उसको ब्रेकअप किया है 2 के अंदर. That is why it is a little smaller than the other one. All right, so moving forward to self-pip test fee. So self-pip test fee, अगर आप जनरल टेस्ट इंडिया के अंदर ले रहे हो, तो इंडिया के अंदर इसकी फीस जो है 12,500 है, 12,500 सब्जेक्ट टू चेंज. अगर आपका कुछ चेंज हो रहा है तो उसके बाद आप अगर टैक्सेस इसके अंदर इंक्लूडिंग टैक्सेस इसके अंदर है. बट इन कनाडा के अंदर आपके अंदर जो जो आपका फीस है वो $290 रहेगा. अगर आप कनाडा में रह के इस टेस्ट को दे रहे हो तो आपको 290 पे करना है, प्लस टैक्सेस को भी पे करना है. टैक्स भी इसके ऊपर ऐड है. इसी के साथ ही ऑल्टरनेटिव प्राइस इन इंडिया इज 12,797 इंक्लूडिंग जीएसटी. तो इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है एज पर सम सोर्सेज. अगर आपके जितने भी मैंने सोर्सेज यहाँ पे भी देखे हैं मिली हूँ, डिपेंड करता है. अगर आपका सेंटर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करता है, अपने कुछ मेंटेनेंस फीस चार्ज करता है, तो थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे. बट 12,797 जो है 12,797 रुपीज़ जो है यहाँ पे इंक्लूडिंग जीएसटी आपकी ये फीस है इंडिया के अंदर. और कनाडा के अंदर $290 फीस है इसकी, और टैक्सेस इसके अंदर इंक्लूड है. तो ये टेस्ट कनाडा के अंदर जब आपको पीआर के लिए अप्लाई करना है वहाँ पे भी, अगर इंडिया से आपको पता है कि सेल्फ पिप टेस्ट को वहाँ पे कनाडा में बहुत मान्यता है, तो देन आप यहाँ से, और जब जो भी वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो कॉलेज के लिए कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट वीज़ा कर रहे हो, या फिर कनाडा के अंदर रह के जॉब के लिए अप्लाई करो, तो आप उनकी टर्म्स को प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें कि वहाँ पे सेल्फ पिप टेस्ट जो है जब आप पीआर केस लगा रहे हो तो वहाँ पे उसको मान्यता है या नहीं है. दे विल कंसीडर दैट टेस्ट इन देयर. अगर वो टेस्ट नहीं है तो देन आई विल give you the another test details. That is the next video. In my next video you can see that in there. Okay, now moving to the next one. self pip test जो है वो जनरल लिसनिंग एंड जो आपका है लिसनिंग का और स्पीकिंग का टेस्ट का जो फीस रहता है वो $195 है, प्लस इसके अंदर टैक्सेस भी रहते हैं, और ओनली ये कनाडा में ही आपका है अवेलेबल. ओके, एंड नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर इंडिया फॉर स्पेसिफिक प्राइसेस. तो इंडिया के अंदर अभी जो ये 2 टेस्ट है लिसनिंग और स्पीकिंग के, अभी प्राइसेस का इतना ज़्यादा नहीं मुझे आइडिया मिला, क्योंकि इंडिया में वो एक फुल टेस्ट देते हैं. फुल टेस्ट मीन्स एक पैकेज के अंदर आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब देना पड़ेगा. वो स्पेसिफिकली ऐसे 2 टेस्ट को कंडक्ट नहीं करते हैं. मे बी सेंटर चार्जेस, मे बी इनके खुद के चार्जेस, और मे बी हाई कॉस्ट, बिकॉज एग्ज़ाम कंडक्ट करना, फिर उसके बाद टीचर्स हायर करना, उसके बाद एग्ज़ाम को सेंटर में भेजना, उसकी कॉस्ट, एवरीथिंग, राइट. सो वो सब कुछ डालने के मे बी उनको कुछ ज़्यादा नहीं प्रॉफिट रहता होएगा, बिकॉज इट इज़ सो दिस इज़ द गेम ऑफ प्रॉफिट. ओके, सो सब लोग यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए ही है, राइट. तो मैंने जहाँ जितना देखा है, सो इंडिया में इतने ज़्यादा हाई चार्जेस हो गए हैं, ये सेंटर जो इतने ज़्यादा हाई चार्जेस आपसे ले रहा है जस्ट सिर्फ एग्ज़ाम देने की, राइट. उसके बाद अगर नहीं पास होते हो तो फिर उसकी आपको रीचेकिंग अगर करवाते हो तो उसकी फ़ीस होती है. अगर आप दोबारा लेना होता है टेस्ट तो उसकी अलग से फिर से आपको दोबारा उतनी फ़ीस भरनी है. दिस इज़ काइंड ऑफ फॉर मी, इट्स लाइक आई डोंट लाइक दिस सिस्टम. ओके, सो अगर आपने एक बार दे दिया तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 चांसेस तो मिलने चाहिए ना, 2 to 3 चांसेस विद इन द सेम फीस. बिकॉज आई नो आइल्स की फ़ीस अभी आजकल आई थिंक 16 और 17,000 रुपीज़ है इंडिया के अंदर, तो उतनी ही फीस यहाँ पे भी है. सो इट्स टू मच फॉर द पेरेंट्स हु इज स्पेंडिंग द मनी ऑन देयर किड्स, राइट. बहुत ज़्यादा है. सो एनीवे, सो वो चलो उनका है, बट एडिशनल फीस जो है यहाँ पे कंसीडर क्या करते हैं, रीस्केड्यूलिंग फीस जो है वो है आपकी कनाडा में. अगर आपको रीस्केड्यूल करना है टेस्ट विद इन 7 days ऑन योर रिक्वेस्ट, सपोज आपका कोई काम आ गया, आपको
टाइम नहीं मिल रहा है, सो आपने क्या किया, या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ को आप नहीं कर सकते हो इग्नोर, तो $50 देके आप इसको रीस्केड्यूल भी कर सकते हो। और अगर आपको कैंसिलेशन करना है एट एनी कॉस्ट, सपोज आपको एग्ज़ाम नहीं देना, आपका बिना एग्ज़ाम दिए ही कहीं पे जॉब लग गया है, या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पे वेस्ट करने का भी पैसा कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इंडिया वापस जाना है या कोई और किसी कंट्री में जाना है, देन यू कैन ऑल्सो गेट योर फी बैक। बट अगेन वो फीस आपको 50% जो है परसेंट से आपको वापस मिलेगी, और आपको 7 डेज पहले, आपको एग्जाम से 7 दिन पहले आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ओके, जो अगर आप इससे पहले लेट करते हो, 7 दिन के बाद करते हो, तो आपको कुछ भी पैसे वापस नहीं मिलेंगे, तो आपको वो सारी पेमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी पूरी आपकी, आपको नथिंग, यू कैन गेट इट बैक। ओके, सो स्कोर जो है रिपोर्ट, जो स्कोर रिपोर्ट है वो कनाडा की, वो $20, फिजिकल कॉपी के लिए आपको एक्स्ट्रा $20 देने पड़ेंगे, बट ऑप्शनल प्रायोरिटी इज शिपिंग अवेलेबल। जो अगर आप कहीं दूर हो देन आपको शिपिंग के चार्जेस भी इसके अंदर जाएंगे, नॉर्मली जैसे रहते हैं, राइट। अगर आप कोई चीज़ देते हो तो उसके अंदर आपको शिपिंग चार्जेस भी लगते हैं। और यहाँ पे प्लीज नोट दैट द प्राइसेस आर सब्जेक्ट टू चेंज, अगेन डिपेंड करता है, इट्स बेस्ट टू वेरीफाई विद द सेंटर्स, टेस्ट सेंटर्स कि वो कितने, अगर आपका टेस्ट आता है आपको कैसे मिलता है। तो प्लीज़ जब भी आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर भी आपको रिलाई नहीं करना है, जब आप टेस्ट देने जाओगे तो यू शुड कंफर्म दैट विद द सेंटर, विद द पर्सन इन पर्सन ओवर देयर, सो दे कैन गिव यू द फुल डिटेल एंड हाउ you will get your score sheet. Okay, so that is the important thing. So how, when you will conduct the exam, how the exam will be, and then the score sheet, how you will get your score sheet, and what time criteria. Okay, time भी जरूर पूछना है कि कितने दिन के अंदर आपको आपकी स्कोर शीट मिल जाएगी if you clear the exam. Okay, और फीस देने के बाद when your exam, within how many days it will take to like सिट इन द एग्जाम, तो वो सब चीज़ें आपको पहले से कंफर्म करनी है बिफोर। इफ़ यू नीड माई हेल्प देन डेफिनेटली यू कैन सेंड मी द मैसेज, तो आपको मैं रिप्लाई ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। बट अगेन keep in your mind, I'm in America, so it will be respond will be little delay on that, because जो भी आपका question रहता है, if the question is related with the very specific information, then it will take time for me to get all the details from calling to the centers or in person visits, so it will take टाइम फॉर मी और रिसोर्सेज को भेज के वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट एनी फेक इंफॉर्मेशन हियर टू मेक द स्टूडेंट्स मोर लाइक कि क्या हो रहा है आपको समझना है। ओके, आई जस्ट वांट टू कीप दैट थिंग क्लियर टू यू, सो इफ आई विल पुट दैट इंफॉर्मेशन ऑन माय साइट ऑन दिस चैनल, देन डेफिनेटली इट विल बी वेरी क्लियर एंड थोरोली इन्वेस्टिगेटेड इंफॉर्मेशन। ओके, सो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो भी आपको यहाँ पे आज दी जा रही है, दैट इज ऑल करेक्ट। यू कैन वेरीफाई विद द कैनेडियन गवर्नमेंट, और यू कैन वेरीफाई विद their own sites, and then you can also confirm with Indian sites, Indian centers who is providing you the self-pip test. Okay, but this test is also equals to your IELTS test. That's all I can say at this point. Okay, now moving forward to the next one. सेल्फ पिप जर्नल टोटल टाइम, अब यहाँ पे भी क्या है कि टाइम कितना आप स्पेंड करते हो, तो दैट इज लाइक टाइम इज अंडर 3 hours एंड डन इन वन सिटिंग। सो एक ही, जैसे आप आइल्स का एग्जाम एक ही बार करते हो, देने जाते हो, सो इन दैट वे सेम वे आपका जो एग्जाम है, जैसे अभी तक हमने क्या क्या बात की है, हमने सेल्फ पिप के बारे में बात की है, इसकी टाइप्स के बारे में बात की है, इसकी फीस के बारे में बात की है, और कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है उसकी बात की है। नाउ इज अ लास्ट क्वेश्चन जिसका मैं अभी आंसर दे रही हूँ आपको, कि एग्जाम जो है वो कैसे आपने देना होता है, क्या इसका क्राइटेरिया है, कितने टाइम की इसकी लेंथ होती है एग्जाम की, और कब कब ये एग्जाम देना होता है, बोथ साइड, जर्नल के अंदर भी और जर्नल एस एल स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग के अंदर भी, एलएस के अंदर भी। ओके, सो दोनों का एग्जाम। सो ये 5 क्वेश्चंस के आज आपको मैं आंसर दे रही हूँ। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई एम हैप्पी टू आंसर यू ऑल। ओके, बट अगेन यू नीड टू वेट फॉर लाइक 18 to 20 hours because we are behind. जब आपके वहाँ पे दिन रहता है तो यहाँ पे रात होती है, so I need to work on that and then get you back after getting the clear and detailed information. Okay, सो नाउ सेल्फ पिप, जैसे कि मैंने बताया कि 3 hours का होता है टेस्ट एंड डन इन वन सीटिंग। सो टेस्ट क्या है ये, लिसनिंग टू, फर्स्ट थिंग इज लिसनिंग
to the passages and answer the questions, right? It's not like listening आपने कर लिया, तो ये जो पार्ट रहता है 46 से 55 मिनट का रहता है, तो जिसके अंदर आपको सुनना है और अपने आंसर्स जो है वो शीट के ऊपर लिखने हैं, लाइक अगेन OCR, optical character reader. You need to put that everything in there on the sheet, just with the black dots, okay? एंड आपका रीडिंग जो है, और कुछ लिखना भी रहता है, जरूरी नहीं सब कुछ आपको ब्लैक डॉट ही करना है, यू नीड टू राइट समथिंग ऑल्सो ऑन दैट। एंड देन रीडिंग का जो है, रीड पैसेज एंड आंसर्स क्वेश्चंस। एंड देन ये जो इसका लेंथ रहता है 43 से 56 मिनट का रहता है, तो रीड पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, आपको रीड करना है एंड देन आपको उसके आंसर्स भी देने हैं, लेकिन टाइम जो मिनट रहते हैं इसके अंदर 43 से 56 मिनट्स रहते हैं, क्योंकि आपको आपके आंसर्स को ट्रांसफर भी करना होता है, राइट? सो राइटिंग के अंदर रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस एंड राइटिंग आंसर्स, आपको रिस्पॉन्ड करना है क्वेश्चंस का और आपको आंसर भी लिखने हैं। तो ये टेस्ट टोटली 53 मिनट्स का रहता है। स्पीकिंग जो है वो आपका रिप्लाई ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट वर्बली रहता है, जिसके अंदर आपको इंटरव्यू देना होता है, इंटरव्यू सेशन जिसे आप कहते हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सेम जैसे आपका आइल्स का रहता है, तो इसमें कुछ ऐसा बड़ा चेंज नहीं है। नाउ मूविंग टू द सेल्फ जनरल LS। सो LS टोटल टाइम जो होता है ये 1 घंटा 10 मिनट का रहता है। जो हमारा पुराना हमारा जनरल टोटल टेस्ट टाइम था सेल्फ पिप का, वो 3 आवर्स रहता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम 2 ही टेस्ट दे रहे हैं, 2 ही पेपर आपका यहाँ पे होते हैं, तो इसका जो टेस्ट की लेंथ रहती है वो 1 घंटा 10 मिनट रहती है। इज डन इन वन सिटिंग। अगेन आपको एक ही बार में बैठ के दोनों टेस्ट देने होते हैं, लाइक लिसनिंग भी आपका सेम डे होगा, स्पीकिंग भी आपका सेम डे होगा। लिसनिंग जो है उसके अंदर आपको 46 से 55 मिनट लगेंगे, आपको वो टेस्ट कंप्लीट करना है। यहाँ पे स्पीकिंग जो है अगेन रिप्लाई ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट वर्बली होएगा, और यहाँ पे 15 मिनट्स आपका स्क्रीन स्पीकिंग टाइम रहता है। यहाँ पे भी आपका 15 मिनट ही स्पीकिंग टाइम रहता है, बट यहाँ पे बाकी के जो टेस्ट है वो आपके जो ज़्यादा रहते हैं जनरल के अंदर। यहाँ पे जनरल LS के अंदर आपका सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट का रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है स्पीकिंग 50 मिनट्स का रहता है, और 46 से 55 मिनट का आपका जो है वो लिसनिंग रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ पिप टेस्ट। तो ये आपका सेल्फ पिप टेस्ट के बारे में था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और अभी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सेंड मी द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन सी। और अगर आपको मुझे ईमेल करना है, यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी थ्रू ईमेल्स। माई ईमेल एड्रेस इज getsuccess66@gmail.com. Please don't forget to subscribe. Please don't forget to like this video and share this video with your friends who is definitely staying in Canada or abroad. And then if the people are in India, they're also interested to go to Canada again, then definitely they need to go through this exam also. They can see if this exam is easier than their IELTS exam, and also if this exam is applicable in the universities where they are applied for, or in the workplaces where they are applied for, then definitely they need to keep in their mind they can also have this option. They can choose this one and they can give this test too. But again, I will give you another test details also in my next video. Please don't forget to subscribe this channel. Please don't forget to share this video with your friends. If you are looking for the English speaking buddy partners, then again, we are here to help you out with that too. But again, our main request is, if you are new on this channel, please don't forget to subscribe this channel, because this is a channel free of cost, helping to the community. I'm not charging anything from anybody, because this is my goal to make my team, my students, my people best in the country. So I am Indian, so I love my people, I love my all the brothers and sisters जो भी इंडिया के अंदर हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनको बाहर आना है, तो उन सब के लिए दिस इज़ वन ऑफ माई स्मॉल एफर्ट्स। तो ये बहुत छोटा सा मेरा एफर्ट्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई घबराने की, कुछ सोचने की, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेझिझक अपने क्वेश्चंस, अपनी प्रॉब्लम्स को मुझे ईमेल भी कर सकते हो, और मुझे कमेंट सेक्शन के भी अंदर लिख के दे सकते हो। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू, आई एम ऑलवेज हियर टू लिसन टू यू। और मेरी टीम बहुत ही जल्दी, बिकॉज बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास है, बिकॉज दिस इज़ द ओपन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबडी। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। डेफिनेटली आई ऑलवेज ट्राई हार्ड टू रिप्लाई यू बैक as quick as I can, but अगर लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, but you will definitely get the answers. Okay, don't frustrate, please. Please stay with us and
please like this video and share this video with your friends who is definitely struggling for the exam and for the information. This is the free platform and I'm always here to help you out with that. Thank you so much. This is all about I have it for the pip test, and if you are looking for more information about this test, I'm here to help you out. And then thank you so much. I will see you in the next video. Bye bye, take care, and best of luck for your IELTS exam and self pip test too, if you are looking for this one too. Bye bye, take care, and see you in the next video. Bye.